Ignited Minds Tutorials recently uploaded a video discussing the fundamental concepts of what is democracy. Why democracy, specifically tailored for Class 9 CBSE students studying political science. The tutorial aims to provide a clear understanding of the principles and significance of democracy in today's world. By delving into the concept of democracy, the tutorial explores how it ensures equal participation, protection of individual rights, and accountability of the government to its citizens. Through comprehensive explanations and real-life examples, the tutorial highlights the various forms of democracy and the importance of citizen participation in the democratic process. The video also sheds light on the advantages of democracy, such as fostering a sense of equality, promoting political stability, and ensuring social progress. By providing a solid foundation of knowledge on the topic, the tutorial seeks to inspire students to actively engage in the democratic process, exercise their voting rights, and contribute to building a better society. With a focus on empowering the next generation of leaders, the tutorial encourages critical thinking and informed decision-making, ultimately shaping well-informed and responsible citizens who understand the value and significance of democracy in modern times. Okay, Bacha Bhatti, we will start today with this chapter of why democracy or what is democracy. ठीक है, तो democracy होता क्या है? What is democracy? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो जहाँ पे आप गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है. ठीक है, आप गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी. तो ये तो एक मतलब हमारा फंडामेंटल हो गया कि इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी. हायरार्कियल या मोनार्कियल रूल नहीं है. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, सो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो आज की तारीख में भाई साहब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड चल रहा है. ठीक है, ओके. वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर. चिली बेसिकली कंट्री का नाम है. ठीक है, चिलियंस विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट. ठीक है, when treason became dominant. ठीक है, you must never forget that sooner rather than later the grand avenues will be opened where free men will march to build a better society. Long live Chile. ठीक है, तो यहाँ पे long live people, long live the workers. These are my last words. ठीक है, and I have certainty that my sacrifice will not be in vain. I have certainty that at the least I will be a moral lesson to castigate felony, cowardice and treason. ठीक है, तो ये चिली के जो मतलब उस टाइम पे थे उन्होंने ये लिखा था. ठीक है, तो इसमें ये डेमोक्रेसी पे हिंट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक दिन आएगी, आप लोग घबराइए मत और फिलहाल मतलब चलते रहिए. ठीक है, सो ही इज बेसिकली इनकरेजिंग हिज कंट्रीमैन. ठीक है, दीज आर सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सैल्वाडोर एलेंडे. ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. तो चिली के प्रेसिडेंट थे ये लास्ट स्पीच है उनका. ठीक है, दीज आर सम एक्सट्रैक्ट्स. तो उनके लास्ट स्पीच से थोड़ा बहुत पोर्शन निकाल कर ये लिखा गया है. दीज आर द सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लास्ट स्पीच ऑफ सैल्वाडोर एलेंडे. ठीक है, एलेंडे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोलिशन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब ठीक है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट Allende had taken several policy decisions to help the poor and the workers. So he was an efficient president. इन्होंने काफ़ी सारे policy decisions लिए थे जो poor workers को help करे. ठीक है, okay, so that was the thing. Now policies for poor people and workers. तो उन्होंने कौन कौन से policies अपनाए? Reform of the educational system, free milk for children and redistribution, land to the landless farmers. He was opposed to foreign companies taking away natural resources like copper from the country. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में द लैंडलॉर्ड, द रिच एंड द चर्च अपोज दिस पॉलिसीज. तो उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड्स थे या रिच थे या जो चर्च के लोग थे उन्होंने इनके पॉलिसीज़ को अपोज किया क्योंकि उनके जो स्वार्थ थे वो बेसिकली हिंडर हो रहे थे. सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली ऑल्सो अपोज दिस गवर्नमेंट. तो बहुत सारे दूसरे भी पार्टीज थे जिन्होंने इनकी गवर्नमेंट को अपोज किया. ठीक है, मिलिट्री coup of 1973. On the morning of 11th of September 1973, the military took over the seaport.
तो मिलिट्री ने पूरा कब्जा कर लिया सी पोर्ट पे, ठीक है। द डिफेंस मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। इन्होंने भाई साहब जबरदस्ती उनको रिजाइन करने बोला। मिलिट्री एक्चुअली टुक ओवर द एंटायर कंट्री। एलेंडे रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ ही एड्रेस्ड द पीपल ऑन द रेडियो, पार्ट ऑफ विच वी रेड इन द बिगिनिंग। तो इन्होंने भाई साहब रेडियो पे अपने आप को एड्रेस किया। उस टाइम पे टीवी नहीं हुआ करता था उतना ज़्यादा, तो रेडियो पे वो आए और उन्होंने अपना भाषण दिया, ठीक है। ओके, देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। तो मिलिट्री ने पूरा इनको घेर लिया और भाई साहब बॉम्ब फेंकने लगे। प्रेसिडेंट एलेंडे डाइड इन द मिलिट्री अटैक, ही बेसिकली डाइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले ही वहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था कि डेमोक्रेटिक सेटअप आवे, और डेमोक्रेटिक सेटअप आ भी गया था, प्रेसिडेंट सिलेक्ट भी हुए थे, लेकिन मिलिट्री ने उनको ओवरथ्रो कर दिया एंड द एंटायर थिंग बिकम टॉप्सी टर्वी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके, दिस वॉज द सैक्रिफाइस ही वाज टॉकिंग अबाउट इन हिज लास्ट स्पीच। यही सैक्रिफाइस के बारे में वो बात कर रहे थे अपने लास्ट स्पीच में, ठीक है। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल एज टू हाउ द ट्रांजिशन हैपेंड, बट ये ट्रांजिशन से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इस ट्रांजिशन से बेसिकली कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज द मिलिट्री टुक ओवर। तो डेमोक्रेटिक सेटअप भी आया, लेकिन इस डेमोक्रेटिक सेटअप का किसी को कोई फायदा नहीं हो पाया, और इसलिए इन्होंने भाई साहब एक प्रोत्साहन भरा मैसेज डाला, ठीक है, कि भाई आई नो दैट टुडे आई विल नॉट बी देयर, बट स्टिल कीप ऑन मूविंग एंड वन डे और द अदर थिंग्स विल गेट बैक टू देयर टर्म्स, ठीक है। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, वी हैव सीन एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स वेर। ओके, so a government elected by the people was overthrown by the military through conspiracy and violence। तो यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी तो हुई, ठीक है, गवर्नमेंट आई चिली में, और दिस गवर्नमेंट वाज सिलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का पहला स्टेप तो स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, बट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। मिलिट्री ने इसको ओवरथ्रो कर दिया, मिलिट्री ने पूरे कंट्री को कब्जा कर लिया और गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को ही मार डाला, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस हुआ। What took place in Chile on the 11th of September 1973? 11th of September 1973 में बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। जनरल Augusto Pinochet, an army general, led the coup. He was basically the army general. The government of the United States of America was unhappy with Allende's rule and is known to have supported and funded the activities that led to the coup. तो US में देखो, चिली जो है बेसिकली वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और यूएस का पहले से डोमिनेंस रहा है चिली के ऊपर, ठीक है। चिली के बहुत सारे लोग ऐसे आए, जैसे एक थे अर्नेस्टो शी गुवेरा, ठीक है, ही वाज बेसिकली द लीडर ऑफ चिली। तो यहाँ पे चिली पे उनका दबदबा था। अभी जैसे एलेंडे इलेक्ट हुए तो इन्होंने यूएस को कट ऑफ कर दिया, तो एलेंडे को हटाने के लिए इन्होंने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। सो इट वाज अगस्टो वाज सपोर्टेड, जनरल अगस्टो पिनोशेट, he was an army general, led the coup of murdering और coup of basically terminating चिलीज प्रेसिडेंट, ठीक है। एलेंडे को उन्होंने टर्मिनेट किया था। द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये पॉलिटिक्स है, बेसिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है। ओके, पिनोशेट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 years। फॉर्म अ गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का फेलियर हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिरस्थायी हो जाएगी, ठीक है, इट विल रिमेन फॉर एवर। हो सकता है डेमोक्रेसी का फेलियर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप का फेलियर हो गया, ठीक है। ओके, मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन चिली। डिक्टेटरशिप मतलब समझते हैं, मतलब यहाँ पे कोई अभी तानाशाही, तानाशाही मतलब मेरी जो मर्जी वही होगा, ठीक है, वट एवर आई वुड डिसाइड दैट वुड हैपन। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट की भाई साहब सब लोग कलेक्टिवली मिलकर कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई पॉइंट ऑफ अराइवल हो, ठीक है। Pinochet's government tortured and killed several of those who supported Allende and those who wanted democracy to be restored। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, धीरे धीरे उन सब लोगों को मारना, पकड़ना, धरना चालू किया जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे या एलेंडे को सपोर्ट करते थे, ठीक है। ओके, these included General Alberto Bachelet of the Chilean Air Force and many other officers who refused to join the coup, ठीक है। General Bachelet's wife and daughter were put in prison and tortured। इन सबको भाई साहब फैमिलीज को इनको टॉर्चर किया, इनको मार डाला, ठीक है। 3000 पीपल वेर किल्ड बाय द मिलिट्री। तो ये एक इंटरनल वॉर है, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर वॉर चल रहा है, ठीक है। 3000 पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री वेर किल्ड, मैनी मोर वेर रिपोर्टेड मिसिंग। ये तो किल्ड रिपोर्टेड है, बहुत सारे लोगों को तो अगवा कर लिया जाता था, तो मिसिंग है। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू देम,
ठीक है. So restoration of democracy. Pinochet's military dictatorship came to an end after he decided to hold a referendum in 1988. He felt confident that in this referendum the people would say yes to his continuing in power, but the people of Chile had not forgotten their democratic traditions. तो इन्होंने एक रेफरेंडम लाने की कोशिश की, इन्होंने फिर से इलेक्शन करवाने की कोशिश की और इनको लगा कि यही जीतेंगे, लेकिन पीपल ऑफ चिली मेड अ चॉइस नॉट टू इलेक्ट हिम. ठीक है, रेफरेंडम लाया इन्होंने. देयर वोट वाज अ डिसाइसिव नो टू पिनोशेट. तो इनसे भाई साहब इन्होंने वोट दिया पिनोशेट के अगेंस्ट में. ठीक है, दिस लेड टू पिनोशेट लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर्स. तो इनका पॉलिटिकल पावर भी गया और मिलिट्री पावर्स भी गए. द होप एलेंडे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज्ड. फेलेनी मतलब धोखेदारी, ठीक है, धोखेबाजी. कावर्डिस मतलब डरना, फालतू का डरना. एंड ट्रीजन मतलब कॉन्स्पिरेसी टाइप का. ठीक है, वेयर फाइनली पनिश्ड. तो ये इन्होंने किया था भाई साहब. पिनोशेट ने अमेरिका का हेल्प लेकर मिलिट्री रूल से एलेंडे को टर्मिनेट करा दिया, पूरी डेमोक्रेटिक सेटअप को भाई साहब अस्त व्यस्त कर दिया था. तो ये सब भाई साहब क्या था, एक षड्यंत्र था. ठीक है, इट वॉज ऑल अ कॉन्स्पिरेसी. Political freedom was restored. So finally political freedom was restored. Since then Chile has held 4 presidential elections in which different political parties have participated. तब से भाई साहब चिली में 4. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी डेमोक्रेसी का फेलियर होता भी है और लोगों को चांस मिलता है टू सिलेक्ट डेमोक्रेसी, दे विल गो फॉर डेमोक्रेसी. तो पीपल मेड अ वाइज चॉइस. ठीक है, पिनोशेट आया, पिनोशेट ने डेमोक्रेसी को फेल करवाया, लेकिन बाद में जब उन्होंने इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो लोगों ने डेमोक्रेटिक सेटअप को ही ऑप्ट कराया और पिनोशेट वाज गॉन. ठीक है, फिर से डेमोक्रेटिक सेटअप वापस आया. ठीक है, तो ये लोगों पे है, वो क्या चाहते हैं. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन. हम डेमोक्रेसी की जितनी भी वाहवाही कर लें, है डेमोक्रेसी गुड सेटअप, लेकिन जब तक लोग उसको फेवर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे पिनोशेट जो डिक्टेटर होकर उभरा था उसको भाई साहब टर्मिनेट किया गया और फाइनली फिर से डेमोक्रेसी जो है सेटअप हुई. ठीक है, ओके. स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड. तो आज की तारीख में आर्मी का रोल ना के बराबर हो गया है. ठीक है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू पिनोशेट्स रूल. तो जो लोग भी पावर में आए इन्होंने इंक्वायरी बैठाई पिनोशेट के रूल के ऊपर. दीज इंक्वायरीज शोड दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट. तो ब्रूटल तो थे ही भाई साहब, जो भी डेमोक्रेसी को फेवर करते थे या जो भी एलेंडे को फेवर करते थे उनको तो ये मार ही देते थे, प्लस अंदर ही अंदर काफ़ी भारी करप्शन भी था. ठीक है, डू यू रिमेंबर अ लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू जनरल बैचलेट्स डॉटर हु वाज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर्ड अलॉन्ग with her mother. The girl Michelle Bachelet was elected president of Chile in January 2006. ये जिनको भाई साहब प्रिजन में टॉर्चर किया गया था यही वापस आए और ये प्रेसिडेंट बने चिले के 2006 में. ठीक है, ओके. So a medical doctor and moderate socialist, Michelle became the first woman to be a defense minister in Latin America. In the presidential elections, she defeated one of Chile's richest men. ठीक है, because I was the victim of hatred, I have dedicated my life to reverse that hatred and turn it to understanding, tolerance, and why not say it into love. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो मेरे ऊपर जो बीता है उस आज की तारीख में मैं उसके हिसाब से ही काम कर रही हूँ और मैं अपने कंट्री में चेंज लाना चाहती हूँ. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी. वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैप्टर. ठीक है, बट ओके बच्चा पार्टी अपन ये वाला चैप्टर कर रहे थे सिविक्स में, विच इज़ वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. और हमने देखा कि कैसे दे टुक एन एग्जाम्पल ऑफ चिली विच इज़ बेसिकली अ साउथ अमेरिकन नेशन जहाँ पे यूएस का बहुत ज़्यादा दबदबा था. फिर कैसे मिलिट्री रूल ने ओवरटेक किया, पहले डेमोक्रेटिक रूल था, फिर अचानक भयानक में मिलिट्री को बहुत सारा पावर मिला, मिलिट्री रूल ने ओवरटेक किया और मिलिट्री रूल के ओवरटेक करने के चलते क्या हुआ, काफ़ी तरह अफला तफली हुआ. तो लोगों को लगा कि अगली बार भी चुनाव में मिलिट्री रूल जीत जाएगा, लेकिन मिलिट्री रूल हार गया. ठीक है, इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द पीपल एंड हेंस अगेन डेमोक्रेसी केम बैक. ठीक है, सो वी सॉ हाउ डेमोक्रेटिक सेटअप इज. ठीक है, सो लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट इन दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड इन 1980. तो यहाँ पे पोलैंड में क्या हुआ था 1980 में. ठीक है, 1980 में पोलैंड में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी इन पोलैंड. पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. तो जैसे हमारे यहाँ पे देखो कांग्रेस है, बीजेपी है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे भी एक पार्टी थी जिसका नाम क्या था, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. पोलैंड इज बेसिकली अ यूरोपियन नेशन
और इस यूरोपियन नेशन में इस पार्टी का दबदबा था या इस पार्टी का रूल था, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप एट दैट टाइम। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी था। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब समझ में आता है, व्हाट इज अ कम्युनिस्ट पार्टी। आज की तारीख में कम्युनिज्म कहाँ कहाँ पे है, दो नेशंस जहाँ पे है, रशिया और वो है चाइना, ठीक है। और कम्युनिज्म मतलब होता क्या है, एनीबडी? ओके, कम्युनिज्म बेसिकली मीन्स व्हाट पीपल। हम कम्युनिज्म, देखो इकोनॉमी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से गवर्नमेंट्स होती है। जैसे अगर आप देखोगे, आप जैसे आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं? जो रोड्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब? गवर्नमेंट। जो रोड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है। जो ट्रेन्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। जो बसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब? गवर्नमेंट, है कि नहीं? पब्लिक व्हीकल्स हैं। अगर आपने भाई साहब टूथपेस्ट यूज़ किया, ठीक है, टूथपेस्ट यूज़ किया, फिर लेट्स से सोप यूज़ किया, फिर आपके फूड यूज़ किए, ये सब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना। बुक्स आपके प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। फिर आपका और जितनी भी चीज़ें, मोबाइल, सेलफोन, नेटवर्क, ये सब आपके प्राइवेट है। तो अगर आप देखोगे कि आपके जीवन में मिला जुला सा हिस्सा है, ठीक है। 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू यूज आर ऑलमोस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? इंडिया में इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का और थोड़ा बहुत, तो गवर्नमेंट का जो आपका पर्पस होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट का पर्पस होता है वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर। अभी इस चीज को समझिए, वेलफेयर कैसे, ठीक है। आप यहां से समझ लीजिए, अगर वीटी जा रहे हैं और आपने एक ओला बुक किया है, उबेर बुक किया है, आपका नहीं करके 1500 से 2000 तक का बिल आएगा, है ना। वही चीज़ अगर आप ट्रेन में बैठ कर जाएंगे, हो सकता है तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा हो, भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा रहे, लेकिन वही चीज़ आप अगर जाएंगे तो आपका मामला 20-25 रुपये में निपट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपसे सिर्फ 20-25 रुपये लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस ही है वेलफेयर। प्रॉब्लम ये है कि इस 20-25 रुपये का फ़ायदा उठाने के लिए भर भर के लोग जा रहे हैं। अब इसका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने कन्वीनियंस दिया है आपको, ठीक है, ताकि आपके पैसे बचे, आप जल्दी पहुँचे विदाउट ट्रैफिक जाम्स। लेकिन इस कन्वीनियंस का सब लोग फायदा उठाएंगे तो ऑब्वियसली भीड़ बढ़ेगा और वही आपके लिए इनकन्वीनियंस बन जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? वेलफेयर। जैसे अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया तो फीस लाखों तक जाता है, गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन लिया तो बहुत कम में हो जाएगा, बहुत कम में, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का पर्पस है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज का पर्पस क्या है? प्रॉफिट। भाई सिंपल, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब बनाएगा, ठीक है, उसका पर्पस क्या होगा भाई साहब? पैसा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज का और क्या ये सही है? देखो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में कंपटीशन लगेगा। अभी जैसे देखो, जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था मेरे टाइम पे, ठीक है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल लेने से हम घबराते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कॉल करेंगे ना, तो आप जब कॉल उठा रहे हैं तो उसके भी पैसे लगेंगे, ठीक है, हमको उसके पैसे देने पड़ते थे। अगर मैंने कॉल उठा लिया, पता नहीं किसने कॉल किया है, कॉल उठा लिया अगर मैंने, तो फॉर आंसरिंग द कॉल आई हैव टू पे 3 रुपीज़ पर मिनट, ऐसा था चार्जेस। जो कॉल कर रहा है उसका तो चार्जेस होगा ही, जो आंसर कर रहा है उसको भी चार्जेस लगेंगे। डेटा तो तभी था ही नहीं, देयर वाज नो डेटा, ठीक है, मतलब फ़ोन से डेटा कनेक्ट नहीं होता था, कंप्यूटर से आप डेटा कनेक्ट कर सकते थे, तो ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, तभी एक ही कंपनी थी, ठीक है, BSNL था, फिर धीरे धीरे भाई साहब आपका वोडाफोन आया, फिर प्राइवेट, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर बहुत सारे का, और जैसे जैसे ये आते गए वैसे वैसे क्या होता गया, प्राइस ड्रॉप 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 ड्रॉप, क्योंकि सब लोगों को कम में ज़्यादा चाहिए, है ना। आज की तारीख में लगभग 300 रुपये में आप पूरा महीने डेटा भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, कॉल्स भी अनलिमिटेड है, मैसेजेस भी। तो ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसका फ़ायदा किसको मिला? कस्टमर को। और ये किस लिए मिला? किस लिए मिला? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में कंपटीशन लग गया, है ना। कौन जितना ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे और जितने पैसे कम में,
क्या ये समझ में आ रहा है? सो दैट वाज द कंपटीशन दैट एग्जिस्टेड. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो देखो प्राइवेट में भी फायदा है और पब्लिक में भी फायदा है. प्राइवेट में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, जिसका फायदा किसको मिल रहा है? कस्टमर को मिल रहा है. ठीक है. और गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली वेलफेयर है. ठीक है. तो अभी जैसे देखो चाइना में किस तरीके का इकोनॉमी है, चाइना में कम्युनिस्ट इकोनॉमी है. तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है? जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो 90% कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 10% और लेस देन 10% दैट विल बी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स. इसलिए आप चाइना में बिजनेसमैन लोगों का नाम नहीं सुनेंगे. एक बिजनेसमैन जो काफ़ी फेमस हैं सिर्फ चाइना में, उनका नाम है जैक मा, जिन्होंने बेसिकली अलीबाबा का जो ओनर है वो. ठीक है. अदरवाइज यू वुड नॉट हियर मच ऑफ बिजनेस पीपल फ्रॉम चाइना, क्योंकि पूरा का पूरा वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, सर्विसेज मिलेंगे, लेकिन जैसे ये जो ये इंटरैक्टिव पैनल है ये चाइना का है, असेंबल इंडिया में हुआ है, बट दिस मैक्सअप कंपनी इज चाइनीज कंपनी. ज़्यादा करके आपको ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे मिलते हैं. ठीक है. क्या हुआ? एसी चलती है? नहीं. क्यों? 5 जन में क्यों एसी चले? हाँ भाई साहब इतना तो एडजस्ट कीजिए. 5 जन में कौन एसी चलाता है यार? या एसी का हवा खाने होते हो पढ़ने आते हो? गर्मी लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा मूवमेंट हो रहा है, मुझे नहीं लग रही है. आप लोग बैठे बैठे आप लोगों को गर्मी लग रही है. ये सब करना है भाई साहब किसी और क्लास में जाओ, यहाँ पे मत आओ. सीधा बोल रहा हूँ मैं. एसी का हवा खिलाने के लिए नहीं बैठा रहता है आपको. ओके. सो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, जब तक कम से कम 20-25 जन नहीं हो तब तक मैं एसी नहीं चलाता हूँ, और ये ऐसा ही रहेगा. आपको गर्मी लगे तो आप भाई साहब कोई और दूसरा क्लास देख लो. सिंपल है, एब्सोल्युटली सिंपल. आई विल बी ब्लंट ऑन दिस. यहाँ पे मैं एसी का खर्चा आपके लिए नहीं बेयर करूंगा. ओके. पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश. तो दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम. तो अभी यहाँ पे आपका इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? 90% आपका क्या है? गवर्नमेंट है. 90% गवर्नमेंट है. आई डोंट वांट दिस टू कम अगेन. ठीक है. डोंट वांट दिस टू कम अगेन. दिस इरिटेट्स मी वेरी मच. किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो मुझे समझ में आता है. मैं यहाँ पे एक इधर मूवमेंट कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है. आप भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है, विच मीन्स यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट स्टडीज आउट हियर. यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट स्टडीज आउट हियर. आपको एसी चाहिए यहाँ पे. वाई डू नीड इट भाई? 6 लोगों में कौन एसी चलाता है? सो कम्युनिस्ट में आपका भाई साहब गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर है, और आपका जो 90% कम्युनिस्ट, दिस ब्रेक्स द रिदम. नेक्स्ट टाइम somebody रिक्वेस्ट मी ना, आई विल सेंड दैट पर्सन बैक होम. ठीक है. सीधा घर भेज दूंगा. आपको नहीं पड़ रहा है, आप घर बैठ के एसी का मजा लीजिए, यहां पे आने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेट इट बी दैट वे. Okay, so we have 2 forms of government. One is basically the communist, ठीक है, and the other one is capitalist. 5 लोगों में एसी भाई साहब, इतने अय्याशी हो भाई साहब आप. हाँ. कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी? कम्युनिस्ट इकोनॉमी में भाई साहब आपका हो गया 90% आपका गवर्नमेंट होता है एंड 10% अप्रोक्सीमेटली आपका प्राइवेट होता है. ठीक है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उल्टा होता है, जैसे 90% आपका प्राइवेट होगा और 10% आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट. ठीक है. मिक्स्ड इकोनॉमी में 50% अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट और 50% आपका गवर्नमेंट. ठीक है. समझ में आ रहा है? बोलिए. नहीं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इसी तो आपको बोल रहा हूँ. देखो आप सुबह से उठकर देख लीजिए, जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं, आप एक सोप यूज़ करते हैं वो प्राइवेट मैन्युफैक्चर है. आप यहाँ तक पहुँचने में रोड को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट. आप भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गिवन टू यू बाय गवर्नमेंट. ठीक है. आप कोई खाना पीने का चीज़ है वो प्राइवेट है. ठीक है. आप लेट्स से NCERT की बुक्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं. देखो दिस तो आपका मिक्स्ड है. आप कोई बस से आ रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ऑल दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट. आप देखोगे पूरे दिन में आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ की होगी, लगभग 50% आपका भाई साहब प्राइवेट होगा और लगभग 50% आपका भाई साहब गवर्नमेंट होगा. सो इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है.
चाइना इज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इसलिए चाइना में ज़्यादा करके आप बिजनेसमैन लोगों का नाम नहीं सुनेंगे, बहुत कम सुनेंगे। जैक मा हु वाज बेसिकली द ओनर ऑफ अली बाबा, अभी तो वो भी गायब है, पता नहीं उनका नाम सुनने को नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वट एवर इट इज, दिस इज बेसिकली अ प्योर कम्युनिस्ट इकोनॉमी। देन वी हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर आप यूएस देखेंगे तो यूएस इज बेसिकली अ प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यूएस में गवर्नमेंट के पास बहुत कम शेयर है, जैसे डिफेंस गवर्नमेंट हैंडल करता है, बाकी रेलवे से लेकर सब कुछ उनका वैसा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप यूएस में काफ़ी सारे लोगों को आप बिजनेस ओरिएंटेड नाम सुनेंगे, जैसे आपका जेफ बेजोस हो गया, ठीक है, बिल गेट्स हो गया। ऑल दीज पीपल आर बेसिकली बिलोंगिंग फ्रॉम यूएस। बिग बिजनेस टाइकून्स आर ऑल मोस्टली बिलोंगिंग फ्रॉम यूएस बिकॉज इट्स अ बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी। यहाँ पे 90% आपका प्राइवेट है, चाहे आप स्कूलिंग ले लो, चाहे भाई साहब आपका रोडवेज कंस्ट्रक्शन ले लो, ठीक है, हाउसिंग ले लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका गवर्नमेंट ने बहुत कम पोर्टफोलियोज अपने पास रखे हैं। गवर्नमेंट ने एक पोर्टफोलियो रखा होगा डिफेंस का, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो क्या ये 3 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ रहा है, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? पोलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोलैंड। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 को समझा है मुझे नहीं मालूम है, बट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 पोलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी अटैक्ड बाय जर्मनी, और इसी से पहला भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 पहला चालू हुआ 1939 में, ठीक है, जब हिटलर ने पोलैंड पे कब्जा किया। जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया और कब्जा किया तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। और हिटलर का पोलैंड पे अटैक करने का मेन रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन? एनीवन? देखो 1914 से 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने पहला पोलैंड पे कब्जा किया, और द रीजन व्हाई इट अटैक बिकॉज हिटलर जो था, जर्मनी वाज टोटली अगेंस्ट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म उस टाइम पे रशिया में फैल रहा था। प्रॉब्लम क्या था कि जर्मनी के ही एक इंसान ने, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है, जर्मनी के ही एक इंसान ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, ठीक है, ये जर्मनी भाषा में लिखी हुई है दास कैपिटल, और इसी में कम्युनिज्म का फंडामेंटल है, कम्युनिज्म का फंडामेंटल, ठीक है, दास कैपिटल। और इसी से कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला। और द रीजन वाई हिटलर हेटेड हिम इज बिकॉज ही वॉज अ ज्यू एक कम्युनिटी है, ज्यूइश कम्युनिटी, ठीक है, और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इसका पूरा विरोध किया। तो द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बी अटैक्ड बाई हिटलर and which started the first world war was Poland, and the reason why it was attacked was because it was a communist country, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री था, इसीलिए वो अटैक हुआ। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, खैर ये तो मैं आपको 1939 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है कब की भाई साहब? 1980s की। पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। चाइना का इकोनॉमी कितने लोग समझते हैं? कम्युनिज्म है, लेकिन कम्युनिज्म मतलब क्या है? हाँ 90% गवर्नमेंट। हाँ नहीं वो तो समझा, लेकिन वहाँ पे अभी तक वन पार्टी रूल ही है, दूसरे किसी पार्टी को, देखो कम्युनिज्म में भी डेमोक्रेसी है, समझ में आ रहा है? जैसे हमारे इंडिया में भी 2 कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, किसी को मालूम है? नहीं, बीजेपी इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी, नो। आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, CPI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, ठीक है, CPI है और CPIM है, ये दोनों हैं। लेकिन ये छोटे पैमाने पे हैं, बड़े पैमाने पे सेंट्रल लेवल पे नहीं आ पाई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, जैसे जहाँ पे भी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे एक ही पार्टी है, जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, तो बट ऑब्वियस वही जीतेगा। बट ऑब्वियस बोल तो सकते हैं इनकी डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया आपने, तो एक ही पार्टी जीत रही है, और एक ही पार्टी वैसा गवर्नमेंट फॉर्म करी है, और एक ही स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ये? तो चेंज आने की कोई संभावना नहीं है। चेंज कौन ला सकता है? पब्लिक, बाय द मीडियम ऑफ देयर वोट, लेकिन कोई संभावना ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन पोलैंड में भी था, और ज़्यादा करके कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में आपको ऐसा सिचुएशन दिखेगा, ठीक है। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ अभी बहुत कम रह गई हैं, चाइना, रशिया और मतलब पोलैंड, ये बहुत कम कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं अभी, ठीक है, वेरी लेस, ना के बराबर हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में कम्युनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ओके, पोलैंड वाज रूल्ड बाय पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ठीक है, तो पोलैंड में इस पार्टी का वैसा रूल था।
दिस वॉज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप एट दैट टाइम। तो बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टीज उस टाइम पे, तभी क्या हो रहा था देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रशिया था वो एक बहुत स्ट्रांग नेशन था, अभी भी है, ठीक है। और रशिया और यूएसए में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। देयर वाज बेसिकली अ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब समझते हैं? सर आपस में बिना वॉर के वॉर, सर मतलब विदाउट एनी वायलेंस। अगर वॉर ही नहीं है तो वायलेंस, अगर वायलेंस ही नहीं है तो वॉर क्यों? एनीवन एल्स? आप लोग बहुत बार सुने होंगे ना, अरे इसके और इसके बीच में ना कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। कोल्ड वॉर चल रहा है मतलब हाँ, जो दिखता ना हो लेकिन अंदर ही अंदर हो। हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? हिडन, ठीक है, जो दिखता ना हो लेकिन अंदर ही अंदर हो, ठीक है। तो कैसा हो रहा है, मतलब जैसे कोल्ड वॉर का सिचुएशन कैसा है, अभी जैसे यूएस एक पावरफुल नेशन है, बहुत सारे नेशंस ना इसके साथ ग्रुप बना रहे हैं, तो धीरे 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 वॉर जैसी सिचुएशन तैयार हो रही है। यूएसएसआर, रशिया एक पावरफुल नेशन है, बहुत सारे नेशंस इसके साथ ग्रुप बना रहे हैं, तो धीरे 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 एक और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तैयार हो रही है। इसको अपन बोलते हैं कोल्ड वॉर। यहाँ के स्पाइस यहाँ पे हैं, यहाँ के स्पाइस यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं इनको खबर मिल रही है, यहाँ के क्या गतिविधियाँ हो रही हैं इनको खबर मिल रही है। स्पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो कोल्ड वॉर मतलब आर्मीज लेकर एक दूसरे को मारने काटने नहीं पहुँचे हैं, लेकिन सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन हो गई, और ऐसे कोल्ड वॉर के सिचुएशन में रशिया ने कोशिश किया कि कम्युनिज्म पूरे दुनिया में फैले, ठीक है। ज़्यादा करके डेमोक्रेटिक सेटअप था, लेकिन रशिया ने कोशिश किया कि पूरे दुनिया में कम्युनिज्म फैले। एंड वन ऑफ द पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। इन दीज कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वाज अलाउड टू फंक्शन। तो इन सारे कंट्रीज में कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी बस नॉट अलाउड टू फंक्शन, भाई साहब कोई अलाउड। जैसे आपको बोला मैंने कि चाइना में एक ही पार्टी है, वन पार्टी वन नेशन, ठीक है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे भी था। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। यहाँ पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का है, ठीक है, तो दे कैन नॉट अलाउड टू चूज, ठीक है। Okay, so what will happen? Those who spoke against the leaders or the party or the government were put in prison. The government in Poland was supported and controlled by the government of the Soviet Union. जैसे मैंने आपको बोला, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर मतलब रशिया, और रशिया से कम्युनिज्म जन्मा, ठीक है। ये इस पूरे कम्युनिज्म का विस्तार हुआ यूरोप में, ठीक है। कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ये कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनके कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो पोलैंड में भी यूएसएसआर का मतलब फॉर्मेट चल रहा था, ठीक है। अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट। तो यूएसएसआर उस टाइम पे बहुत बड़ा वास्ट और कम्युनिस्ट स्टेट था, ठीक है, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट स्टेट था। आर वी क्लियर? पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझ पा रहे हैं? पोलैंड में एक पार्टी थी, एक ही पार्टी थी जो बार बार जीत रही थी, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इस पार्टी को कौन फंड कर रहा था? यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज क्या हो जाए, कम्युनिस्ट हो जाए, ठीक है। कम्युनिस्ट मतलब होता क्या है? कम्युनिस्ट इज बेसिकली अ वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट, जहां पे पब्लिक का वेलफेयर ही प्रधानता पाए, ठीक है। गवर्नमेंट जब कोई रेलवे लाइन सेटअप करती है, या कोई नई गाड़ी चलाती है, या कोई हाईवे सेटअप करती है, या कोई ब्रिज बनाती है, तो उसका पर्पस क्या होता है? वेलफेयर, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसा वेलफेयर का सिचुएशन अराइज हो, ठीक है। ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड। लेनिन कौन था? एनीबडी नोज हु इज लेनिन? ओके, रशिया में आप लोग ये सब 10th में पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन में। रशिया में एक बहुत ही पावरफुल लीडर थे लेनिन, ठीक है। ये लेनिन ने ही रशिया में कम्युनिज्म को लाया। कार्ल मार्क्स भाई साहब एक राइटर थे सिर्फ, उन्होंने बुक लिखी और बात खत्म। इस बुक को पढ़ा लेनिन ने, और इस फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट को लॉन्च किया कहाँ पे? रशिया में। तो रशिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। लेनिन का फॉलोअर था स्टालिन, और स्टालिन बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था, ठीक है। तो लेनिन के जाने के बाद स्टालिन ने टेक ओवर किया, और स्टालिन के साथ हिटलर का पूरा एकदम 36, ठीक है। स्टालिन और हिटलर जो थे एकदम क्रॉस में थे भाई साहब, ठीक है। लेनिन सॉरी अपना स्टालिन एंड हिटलर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर में इन दोनों में बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, ठीक है। इनफैक्ट स्टालिन ने ही हिटलर को डिफीट किया था, ठीक है। एक बार रशियन फोर्सेस घुस गई यूरोप में, तो हिटलर जो डिफीट हुआ था वो स्टालिन की वजह से ही हुआ था, और फिर अमेरिकन ट्रूप्स भी आ गए थे, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं
ऑन द 14th ऑफ अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड, तो लेनिन शिपयार्ड था जो कहाँ था, पोलैंड में था। किसी शिप यार्ड का नाम, शिप यार्ड मतलब समझते हैं क्या होता है शिप यार्ड मतलब शिप्स का स्टेशन, समझ में आ रहा है? जैसे आपका रेलवेज में ट्रेन्स का स्टेशन होता है, वैसे शिप का स्टेशन। तो इस शिप यार्ड का हाँ पोर्ट भी बोल सकते हैं। पोर्ट एक्चुअली, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट और शिप यार्ड में डिफरेंस क्या होता है? पोर्ट होता है जहाँ पे आप गुड्स की लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं, और शिप यार्ड मतलब शिप की मेंटेनेंस जहाँ पे हो। समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे स्टेशन और एक होता है भाई साहब जहाँ पे ट्रेन्स को हॉल्ट किया जाता है, ट्रेन्स की सर्विसिंग की जाती है, वो और स्टेशन अलग होता है ना। तो एक होता है टर्मिनस और एक होता है भाई साहब आपका स्टेशन। ठीक है। तो टर्मिनस में आपका भाई साहब सारा जो काम किया जाता है ट्रेन्स पे, मेंटेनेंस वगैरह, और जो स्टेशन होता है वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो यहाँ पे भी आपके पोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे अनलोडिंग लोडिंग होती है। शिप यार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स बनते हैं, मेंटेनेंस होती है। ठीक है, ओके। तो शिप यार्ड था लेनिन शिप यार्ड। द सिटी ऑफ ग्dansk वेंट ऑन अ स्ट्राइक। द शिप यार्ड वॉज ओन्ड बाई द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ओन कर रहा था और ये सब लोग वर्कर्स लोग स्ट्राइक पे चले गए। इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वेर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों क्यों बताइए, आप बताइए। कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट जब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 90 to 95% सब कुछ भाई साहब गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। आपको लगता होगा कि चाइना का प्रोडक्ट है ये, लेकिन एक्चुअली चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है। क्या ये समझ में आ रहा है? चाइना का प्रोडक्ट मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोडक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन चाइना एज अ कम्युनिस्ट नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वेर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का होल्ड था। ठीक है, ओके। द स्ट्राइक बिगैन विद अ डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर, अ वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट जब आ जाती है ना, चलो निकालो, चलो निकालो भाई साहब, ऐसा हो जाता है, फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर कौन बोलेगा? ठीक है, तो एक क्रेन ऑपरेटर था कोई जिसको निकाल दिया था, और एक वुमेन को भी निकाल दिया था, वुमेन वर्कर। तो इनको क्यों निकाला था इसका कोई रीजन नहीं था, जस्ट गवर्नमेंट फेल्ट दैट दे शुड बी थ्रोन आउट। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई साहब इनको थ्रोन आउट किया जाए। तो इन्होंने बोला कि भाई स्ट्राइक करेंगे हम जब तक इनको वापस ना लिया जाए, जब तक इनको वापस ना लिया जाए, वी विल बी ऑन स्ट्राइक। दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल। ठीक है, बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वेर नॉट अलाउड, ठीक है, इन पोलैंड। तो ये इलीगल था क्योंकि ट्रेड यूनियंस किसी को मालूम है ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे गारमेंट्स का जो शॉप है वो ज़्यादा करके मारवाड़ी लोग ओन करते हैं। ठीक है, जूतों का शॉप, गारमेंट्स का शॉप, तो इनका एक यूनियन होता है कि नहीं भाई साहब, है कि नहीं? एसोसिएशन होता है इनका भाई साहब। मारवाड़ियों का एक एसोसिएशन होता है, गुजरातियों का एक एसोसिएशन होता है इनका भाई साहब। मतलब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि नीलकंठ का कोई एक ही ओनर है? नहीं, बहुत सारे ओनर्स हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, और नीलकंठ बहुत फैला हुआ है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नीलकंठ एक प्राइमरी लोकेशन पे बहुत पुरानी दुकान है, आप देखोगे बहुत सारे नीलकंठ है। इनफैक्ट एक भाई साहब मॉल टाइप का भी बना लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये नीलकंठ फूड्स एंड सर्विसेज जो है ये पूरा फैला हुआ है क्योंकि इसका एक एसोसिएशन है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी नहीं बोल सकते। देखो फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी मतलब आप उसको ओन ही करते हैं। किसी उससे खरीदते हो। ओके, समझो फ्रेंचाइजी को कैसे समझाऊं मैं? फ्रेंचाइजी इज नॉट द सेम एज द एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। है वो इलीगल हुआ है। ठीक है, मैं आपसे क्या तो कुछ सवाल पूछ रहा था ना, क्या था? हाँ सॉरी, फ्रेंचाइजी। ओके,
Okay, so we were doing basically what is democracy and why democracy. ठीक है, okay. So end of colonialism after the World War II, India. तो after the World War II, India achieved independence in 1947. तो इंडिया ने भाई साहब क्या किया, अचीव किया इंडिपेंडेंस इन 1947. ठीक है. नाउ embarked on its journey to transform to lifestyle from subjected country to a democracy. ठीक है. तो अभी भाई साहब चेंज आएगा इंडिया में. इंडिया वॉज प्रीवियसली वॉट अ सब्जेक्टेड कंट्री. व्हाट डू वी मीन बाय अ सब्जेक्टेड कंट्री? जहां पे ब्रिटिश रूल का ये सब्जेक्ट हो. ठीक है, इट वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ठीक है. नाउ इट इज स्लाइटली चेंजिंग और स्लोली चेंजिंग टू अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. सो इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम अ सब्जेक्टेड कंट्री टू डेमोक्रेसी. घाना अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1957. तो घाना एक कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस मिला 1957 में. ठीक है. दिस इज बेसिकली नुक्रमा. ठीक है. ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और प्रेसिडेंट बने वहां पे. इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सो वंस घाना अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस, इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज टू अचीव देयर फ्रीडम. ठीक है. तो दूसरे कंट्रीज भी भाई साहब अपने फ्रीडम के लिए फाइट करने लगे. ठीक है. ओके. आफ्टर 1980 डेमोक्रेसी वॉर रिसीव्ड इन सेवरल कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका. ठीक है. डेमोक्रेसी वॉर रिसीव्ड इन बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में डेमोक्रेसी के लिए जंग छिड़ गई. ठीक है. डेमोक्रेसी के लिए वॉर चालू हो गया. तो डेमोक्रेसी वॉर वाज स्टार्टेड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका. ठीक है. 1989-90 पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्री बिकेम फ्री फ्रॉम सोवियत यूनियन. तो यहाँ पे भाई साहब फ्री हो गया. पोलैंड वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन एंड बिकेम फ्री फ्रॉम. ठीक है. सोवियत यूनियन कंप्राइज्ड ऑफ 15 रिपब्लिक्स. अभी सोवियत यूनियन में भाई साहब कितने रिपब्लिक्स थे? 15. all the constituent republics emerged as independent countries. So जितने भी constituent republics थे they emerged as Indian countries. ठीक है, independent countries. पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी. पाकिस्तान में अभी भी फिलहाल आर्मी रूल है. जब डेमोक्रेसी फेल होती है तो आर्मी रूल कैन टेक ओवर. ठीक है. तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ भाई साहब? ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी हो गई भाई साहब. However, these changes in Pakistan were not permanent. In 1999, General Musharraf brought back regular, ठीक है, brought back regular army rule in Pakistan. ठीक है. फिर से भाई साहब आर्मी रूल आ गया. तो पाकिस्तान में ऐसा होता ही रहता है, कभी आर्मी रूल, कभी भाई साहब डेमोक्रेसी, कभी आर्मी रूल, कभी डेमोक्रेसी. ठीक है. तो 1999 में क्या हुआ? जनरल मुशर्रफ बेसिकली टुक ओवर पाकिस्तान और पाकिस्तान डेमोक्रेसी रूल से किसमें परिवर्तित हो गया? आर्मी रूल में. ठीक है. ओके. सो ये सर तमाम ट्रांजिशंस हमको दिख रहे हैं जो अलग अलग नेशंस में हुए हैं. बाय 2005 140 कंट्रीज वेर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस. शेख 140 कंट्रीज, इतने सारे कंट्रीज में क्या हो रहा था भाई साहब? मल्टी पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे. सो मेनी पार्टीज वेर बेसिकली कंटेस्टिंग इलेक्शंस. ठीक है. 140 पार्टीज वेर बेसिकली कंटेस्टिंग इलेक्शंस. ठीक है. ओके. डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 192 मेंबर्स और यहाँ पे भाई साहब 192 कंट्रीज. ठीक है. तो आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसमें 192 मेंबर्स ने 192 कंट्रीज फॉर्म किया. ठीक है. ओके. 1 मेंबर 1 वोट. एक मेंबर का एक वोट काउंट हो जाता है. ये यूएनओ बेसिकली क्या है? सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को बेसिकली एड्रेस करता है. जैसे अगर आप देखोगे लॉकडाउन, ये लॉकडाउन का रूल कहाँ से आया भाई साहब? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने. यूएनओ ने बोला कि भाई साहब आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा सारे कंट्रीज को बिकॉज कोविड इज स्प्रेडिंग लाइक रैपिड फायर एंड इज अ किलर डिजीज. ठीक है. तो ये हेल्थ इश्यूज को, जैसे अगर किसी दो कंट्रीज में वॉर हो रहा है तो यूएनओ भाई साहब इंटरवीन करता है. ठीक है. तो यूएनओ में भाई साहब कितने कंट्रीज है? दिस इज बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यहाँ पे कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं? 192 मेंबर्स and all these 192 members are considered as 192 countries. They meet regularly. इनका भाई साहब रेगुलर मीटिंग होता रहता है. ठीक है. जनरल असेंबली, यहाँ पे एक जनरल असेंबली है. पार्लियामेंट वेयर ऑल डिसीजंस टेक्स प्लेस. ठीक है. एक ऐसा पार्लियामेंट है जहाँ पे सारे डिसीजन आपके होते हैं. ये इसका एक बॉडी है. ठीक है. जनरल असेंबली इज वन बॉडी ऑफ यूएनओ, प्राइमरी बॉडी ऑफ यूएनओ. ठीक है. इसको अपन बोल सकते हैं प्राइमरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. General Assembly happens to be the primary body of United Nations Organization. UN appears to be very democratic organization. तो बहुत ही democratic organization है. ठीक है. It's a democratic organization. General Assembly cannot take any decision about what action should be taken in conflict between different countries. ठीक है. तो ये General Assembly जो है, ठीक है, that cannot take any decision. ये कोई भी decision नहीं ले सकता about what action should be taken
इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अगर डिफरेंट कंट्रीज में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये उसमें डिसाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। जनरल असेंबली जनरल चीज़ों को देखेगी। समझ लो कंट्री ए और कंट्री बी में, इन दोनों में वॉर का वातावरण बन रहा है, तो जनरल असेंबली इसमें डिसाइड नहीं कर सकता है कि कैसे इस वायर को डायल्यूट किया जाए, ये उसका स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है। प्लीज इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट, एवरीवन क्विक क्विक क्विक। ठीक है, तो यूएन अपीयर्स टू बी वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक काफी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें बड़े सुचारू रूप से डेमोक्रेसी से फॉलो होती हैं, ठीक है। ओके, जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। जनरल असेंबली भाई साहब आपका कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर डिसीजन विद रिगार्ड्स टू कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड कुछ है तो उस पर जनरल असेंबली जो है यूएनओ का, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। यूएनओ के बहुत सारे विंग्स हैं, जैसे जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO। जैसे आपका देखो ये पल्स पोलियो का जब प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, पल्स पोलियो, हर बच्चे को पल्स पोलियो पिलाया जाए, तो ये यूएन के WHO का प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे टीबी के इलाज को फ्री करवाया जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये भी WHO का प्रोग्राम है, WHO का प्रोग्राम है, ठीक है। ओके, यूएन अपीयर्स टू बी वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल, अभी ये दूसरा विंग है। जनरल असेंबली के बाद आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जनरल असेंबली के बाद आता है आपका भाई साहब सिक्योरिटी काउंसिल। सो व्हाट इज द सिक्योरिटी काउंसिल अप टू, इसके भाई साहब कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हम SC भी बोलते हैं, ऑफ यूएनओ, ठीक है, ऑफ यूएनओ। पहला था भाई साहब आपका जनरल असेंबली, ठीक है, पहला था आपका जनरल असेंबली, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स से बने हुए हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, ये हमेशा रहेंगे, और 10 आपके क्या होंगे, नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये चेंज होते रहेंगे, हर साल चेंज होते रहेंगे। These non-permanent members are going to be periodically changed every year, but these 5 permanent members are going to remain as permanent, ठीक है। ओके, ये सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, यूएस, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, ठीक है, देन वी हैव यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, देन वी हैव फ्रांस, ठीक है, एंड देन वी हैव चाइना। ये आपके 5 मेंबर्स हैं। इंडिया इसमें एंट्री पाने की बहुत कोशिश कर रही है, ठीक है। इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री चाहिए, ठीक है, एज अ परमानेंट मेंबर। चलिए फटाफट लिखिए इसको फटाफट। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन हो जाएंगे भाई साहब, इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 years। तो ये जो जनरल असेंबली है ये क्या करती है, इसके पहले हमने पढ़ा जनरल असेंबली, तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होगा बाय जनरल असेंबली। सो जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, और जनरल असेंबली बेसिकली ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए इसको फटाफट, ये नोट है, ये बुक है, नोटबुक है, बहुत बढ़िया। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आपके कैसे सिलेक्ट हुए बाय जनरल असेंबली फॉर 2 years, ठीक है। ये जनरल असेंबली इनको सिलेक्ट करता है 2 सालों के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 2 मेंबर्स से बनी हुई है, एक है आपके परमानेंट और एक हो गया आपके नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, यूके, रशिया, ठीक है, यूएस, चाइना एंड फ्रांस, ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये चेंज नहीं होने वाले। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को जनरल असेंबली हर 2 साल के लिए इलेक्ट करती है। तो हर 2 साल के बाद क्या होता है, फिर से री इलेक्शन होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनओ का, ठीक है। ओके, इनके पास आपका रियल पावर या वेटो पावर होता है। ओके, अभी वेटो पावर को समझिए, 1 2 3 4 5 6 जने यहाँ पे, ठीक है, और मैं कोई पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे,
लेट्स से, ठीक है, समझ लो कोई पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब ये डेस्क ऐसे ना होकर ऐसे हो, इस तरह से बनाएं, ठीक है, कुछ भी समझ लो ये डेस्क भाई साहब ऐसे जोड़ दिए जाएं। तो अभी आप लोगों में से आप 5-6 जन हैं और आपको वेटो पावर दिया गया है। तो वेटो पावर मतलब वोटिंग होगी, कौन से लोग आपके पक्ष में हैं, कौन से लोग इसके पक्ष में नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर 6 में से किसी ने भी ऑप्ट आउट कर दिया तो वो पॉलिसी नहीं आ सकती। इसको अपन बोलते हैं वेटो पावर। ऐसा नहीं है कि 6 में से 5 जन ने बोला कि नहीं आनी चाहिए तो होना चाहिए। अगर भाई साहब 6 में से 4 जन भी बोलते हैं तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 6 में से 3 जन भी बोलते हैं तो आ जाएगा वो पॉलिसी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 6 में से अगर 1 जन भी ऑप्ट आउट करता है तो वो नहीं आएगा, इट विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। इफ आउट ऑफ दीज 5 कंट्रीज ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, इवन इफ वन ऑफ देम ऑप्ट्स आउट, तो उसको भाई साहब वेटो पावर मतलब वो पॉलिसी नहीं आ पाएगी। समझ में आ रही है? तो इसी को अपन बोलते हैं वेटो पावर। वेटो पावर मींस इनका वोट काउंट होगा और एक भी नेगेटिव वोट अगर आया तो वो जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा। तो दिस इज रियल पावर और दिस इज ऑल्सो नोन एज वेटो पावर। इट मींस काउंसिल कैन नॉट टेक डिसीजंस इफ एनी, इनमें से कोई भी परमानेंट मेंबर सेज नो टू द डिसीजन, ठीक है। काउंसिल कोई डिसीजन नहीं ले सकता है अगर इनमें से कोई भी एक परमानेंट मेंबर ने ना बोल दिया, ठीक है। इट मींस काउंसिल कैन नॉट टेक डिसीजंस इफ एनी परमानेंट मेंबर सेज नो टू द डिसीजन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। यूएस कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूएन, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यूएस से आता है क्योंकि यूएस एक रिच कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस टू मैनेज द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता है, ठीक है, ओके। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो एक और बॉडी है। पहले हमने क्या पढ़ा भाई साहब? जनरल असेंबली पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा भाई साहब? सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हर देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और कुछ देश आपके गरीब होते हैं, तो इनको मैनेज कैसे करेंगे भाई साहब? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर। जैसे बैंक से आपको क्या मिलता है? पैसा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कंट्रीज को पैसा देता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स, ठीक है। इट हैज गॉट 188 मेंबर स्टेट्स। तो टोटल यूएन में कितने हैं भाई हर्ष? टोटल यूएन में कितने मेंबर्स हैं? 196 की 2 192 है। और इस 192 में 188 मेंबर्स आपके भाई साहब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स हैं, ठीक है, ओके। दे डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। इसमें भाई साहब इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। द वोट ऑफ ईच कंट्री इज वेड बाय हाउ मच मनी इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आईएमएफ। तो बट ऑब्वियसली बात है, इस आईएमएफ में सब कंट्रीज ने अपना पैसा लगाया है और किस कंट्री का कितना वेट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री कितना पैसा यूएन में लगा चुका है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ मनी इज विच कंट्री? यूएस। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका हो जाएगा? यूएस का, ठीक है। मतलब इसमें सबका इक्वल राइट्स नहीं होगा। द कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू हैव इक्वल राइट्स है। समझ में आ रही है? द वोट ऑफ ईच कंट्री इज वेट बाय हाउ मच मनी इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आईएमएफ। 52% of the voting power in the IMF is the hands of only 10 countries, ठीक है। ये 10 कंट्रीज जो हैं ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईएमएफ में। तो इसीलिए 52% ऑफ द वोटिंग पावर, 52% वोटिंग पावर भाई साहब आईएमएफ का इन 10 कंट्रीज के हाथों में है। इट इज इन द हैंड्स ऑफ दीज 10 कंट्रीज, ठीक है। समझ में आ रही है? ओके। और ये क्या क्या कंट्रीज हैं? यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रशिया। ये एक ही कंट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसको लिख लीजिए वैसे फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। इन 10 कंट्रीज के पास आईएमएफ का भाई साहब 52% ऑफ वोटिंग पावर है।
ठीक है, डन डन डन, ठीक है। 52% ऑफ द वोटिंग पावर इन IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, इन द हैंड्स ऑफ 10 कंट्रीज। पैर अंदर भाई साहब, मैं गिरूंगा इधर। तो वर्ल्ड बैंक आ गया भाई साहब। दिस इज सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग, यहां पे भी है। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ द US, कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द US गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक आता है और इस वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज्यादा करके US के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि US ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है UNO में, ठीक है। US हैज कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। चलिए फटाफट फटाफट। ओके, तो सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ द US। तो भाई साहब जहां का पैसा लगा हुआ है वहां का ही प्रेसिडेंट क्या होता है, वहां से ही प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा। तो आपका वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहां से आएगा? US से आएगा, क्योंकि US का सबसे ज्यादा पैसा UN में लगा हुआ है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ द US, कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी, ठीक है। कौन नॉमिनेट करता है इसको भाई साहब? ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द US गवर्नमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं US गवर्नमेंट के, जो इसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ओके, डेमोक्रेसी प्रमोशन, यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये सब समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस को समझने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, हमको यहाँ पे समझना है कि भाई साहब डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, और डेमोक्रेसी को फेवर किया जा रहा है UN के थ्रू से बाय US, ठीक है। US में किस तरीके का गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी, ठीक है। और यही चीज भाई साहब प्रमोट हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स से थ्रू UNO को माध्यम रखकर वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डेमोक्रेसी प्रमोशन को इन्होंने लागू किया है, ठीक है। ओके, दे से दैट प्रोपोगेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट एनफ, ठीक है। ये पॉइंट भाई साहब नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करना ही एनफ नहीं होगा, किस तरह से डेमोक्रेसी को लागू किया जाए, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज शुड डायरेक्टली इंटरवीन इन कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी देयर, ठीक है। तो जितनी भी आपके एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज हैं, जहां यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, दे शुड डायरेक्टली इंटरवीन इन कंट्रीज। तो ये इंटरवीन करने चाहिए कंट्रीज में दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक, जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी देयर, ठीक है। तो मतलब कैसा है, देखो समझ लो, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री सब तरफ से ऐसा दबाव बनाना चाहिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पे कि आप भी भाई साहब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कीजिए, आपका एक सुचारू रूप से गवर्नमेंट चलेगा, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज should put pressure on the non-democratic countries to adopt the democracy। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? और US इस चीज को कर रहा है, और US इस चीज को कर रहा है तो दूसरे कंट्रीज का समर्थन भी मिल रहा है उसको, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग US क्या बोल रहा है कि जितनी भी आज की तारीख में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दे शुड डायरेक्टली इंटरवीन। यहाँ के कंट्रीज के सिटीजन्स को और मिनिस्टर्स को कन्विंस करना जरूरी है कि आप भी एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्मेट से डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में आइए, ठीक है। यहाँ पे हमारा पर्पस UN को समझना नहीं है, यहाँ पे हमारा पर्पस वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी को समझना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का प्रोपोगेशन किस चैनल से हो रहा है? थ्रू द मीडियम ऑफ UN, ठीक है। यूनाइटेड नेशन से आपका ये चैनल से US प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड विच इज फेयर एनफ, ठीक है। ओके, इन सम केसेस पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। कुछ जगहों पे भाई साहब यहाँ पे इन्होंने आर्मी उतार दी है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे, ठीक है। इन सम केसेस पावरफुल कंट्रीज, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भाई साहब आर्मी उतार दी है। उसको बंद कर देगा क्या वो स्विच, ठीक है। इन सम केसेस पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पावरफुल कंट्रीज ने आर्म्ड अटैक कर दिया, ठीक है। जैसे इराक था भाई साहब, इराक इज अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। ये इराक भाई साहब क्या कंट्री था? वेस्टर्न एशिया में कंट्री था, ठीक है। ओके, इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932। तो ब्रिटिश रूल से भाई साहब ये इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। इराक इज अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया, इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932, ठीक है। समझ में आ रहा है? इराक एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ठीक है। इराक कैसा कंट्री था भाई साहब? ये वेस्टर्न एशिया का कंट्री है,
बेसिकली एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम, यहाँ पे भी ब्रिटिश रूल था और ये इंडिपेंडेंट हुआ 1932 में, ठीक है। 3 decades लेटर देयर वाज अ सीरीज ऑफ कूप्स बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो कम से कम 30 साल बाद एक के बाद एक मिलिट्री कूप्स होने लगे। मिलिट्री कूप्स मतलब वायलेंस होने लगा। सिंस 1968 इट वाज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। द अरब वर्ड बाथ मीन्स रेनेसांस, ठीक है, चेंज, ठीक है। तो 1968 से, ठीक है, 1932 से लेकर 1968, सिंस 1968 इट वाज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इस पार्टी का रूल था। सद्दाम हुसैन, अ लीडिंग बाथ पार्टी लीडर, प्लेड अ की रोल इन 1968 coup that brought the party to power. So this person, ठीक है, brought the इराक में इन्होंने भाई साहब बाथ पार्टी के लीडरशिप को लाया, ठीक है। मिलिट्री रूल है यहाँ पे। इराक में क्या था? मिलिट्री रूल था। आपने ये मूवी देखी है एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे थोड़ा सा हिंट आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें हुआ क्या था कि भाई साहब यहाँ पे आपका कुवैत बोल के एक कंट्री है, ठीक है, कुवैत, और यहाँ पे इराक है उससे लग के, ठीक है। अभी क्या हुआ, ऑयल प्राइसेस, देखो हमारे देश में अगर कोई प्रोडक्ट हो रहा है तो हम उसको अपने हिसाब से बेच सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑयल प्राइस को लोअर किया। इराक ने रातों रात कुवैत पे अटैक कर दिया बिफोर इवन अलार्मिंग, ठीक है। पूरे भाई साहब घेर लिया और धनाधन गोलियां चलाई, लोगों को मार दिया, लूटा पूटा सब कुछ किया। ये किसने करवाया? सद्दाम हुसैन ने करवाया, ठीक है। आपके भाई साहब जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि दिस इज बैड, तो यूएस गवर्नमेंट ने इराक पे अटैक किया, ठीक है। तो वर्ल्ड में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब यूएस गवर्नमेंट ने इराक को तबाह किया। फाइनली सद्दाम हुसैन वाज अरेस्टेड एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ही वाज एग्जीक्यूटेड। तो सद्दाम हुसैन को भाई साहब, सद्दाम हुसैन अ लीडिंग बाथ पार्टी लीडर, प्लेड अ की रोल इन द 1968 coup। तो ये 1968 coup में क्या हुआ भाई साहब, द पार्टी वाज रिजन टू पावर, पार्टी पावर में आई, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, दिस गवर्नमेंट अबॉलिश्ड ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ एंड गिवन वुमेन द राइट टू वोट। तो एक अच्छा काम इन्होंने क्या किया कि भाई साहब इस्लामिक लॉ जो ट्रेडिशनल था इसको अबॉलिश किया एंड गेव वुमेन द राइट टू वोट, और वुमेन को राइट दिया वोट करने में। वरना जहां पे भी इस्लामिक लॉ है जिन कंट्रीज में, वहां पे वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तो जब सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी आई तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, इसको अबॉलिश किया एंड गेव वुमेन द राइट टू वोट एंड सेवरल फ्रीडम्स नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज। दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो फ्रीडम्स अवेलेबल नहीं थे वो बाथ पार्टी ने इराक में अवेलेबल करवाया। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, तो क्या ये अच्छा था? यस, इट वाज गुड। वो सारे तमाम फ्रीडम्स जो दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लोग नहीं इंजॉय कर पा रहे थे वो सद्दाम हुसैन के नेशन इराक में लोग एंजॉय कर पा रहे थे। वाज इट गुड? यस, इट वाज डेफिनेटली। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979 सद्दाम रैन अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। तो इन्होंने भाई साहब एक डिक्टेटरशिप इस्तेमाल किया, मतलब ये डिक्टेटर बन गए वहां के, तानाशाही जिसको बोलते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ठीक है। ओके, सो दिस वाज बेसिकली एक डिक्टेटरशिप हो गया। ओके, 1 सेकंड। तो उन्होंने बहुत सारा फ्रीडम दिया लोगों को, लेकिन साथ ही साथ वो क्या बन गए? डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब ऑलमोस्ट किंग, ठीक है, उनकी मर्जी चलेगी। तो अभी वो सारी चीजों को भाई साहब अब मतलब सप्रेस एनी डिसेंट और अपोजिशन, कोई भी उसके रूल को अपोज करने की कोशिश करेगा तो उसको सप्रेस कर देंगे, ठीक है। धीरे 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 ये परिवर्तन होने लगा, चेंज होने लगा, ठीक है। He was known to have got a number of political opponents killed and person of ethnic minorities massacred। तो ऐसा माना जाता था कि इन्होंने बहुत सारे ऑपोजिशन के जो लोग थे उनको मरवा दिया था, सीक्रेटली मरवा दिया था। एंड एथनिक माइनॉरिटीज, जितने भी एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जो भी कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में थे उनको मरवा दिया था। मैसेकर मतलब बड़े पैमाने पे एक साथ मरवा देना, ठीक है। सो ऐसा होने लगा, ठीक है। ओके, सो अभी क्या हुआ, द यूएस एंड इट्स अलाइज लाइक ब्रिटेन alleged that Iraq possessed secret nuclear weapons and other weapons of mass destruction which posed a big threat to the world। तो ये सब लोगों ने बोला कि भाई साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन के तहत, ठीक है, इराक में न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पूरे दुनिया में आपका दहशत मचा सकते हैं, ठीक है। इराक कभी भी वॉर पे उतर सकता है, कभी भी नेशंस को तबाह कर सकता है, ठीक है। द यूएस एंड इट्स अलाइज लाइक ब्रिटेन alleged that Iraq possessed secret nuclear weapons। यूएस एंड इट्स अलाइज मने क्या होता है? जो यूएस का समर्थन करते हैं, ठीक है, यूएस को जो लोग सपोर्ट करते हैं।
फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यूएस के फ्रेंड्स, यूएस और यूएस के फ्रेंड्स लोग, जैसे ब्रिटेन ने बोला कि भाई देखो इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और कभी भी भाई साहब ये जंग में उतरेगा तो दुनिया में तबाही मचाएगा बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन व्हिच पोज अ बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड। तो इसका भाई साहब बड़ा थ्रेट है। बट व्हेन अ यूएन टीम वेंट टू इराक टू सर्च फॉर सच वेपन्स इट डिड नॉट फाइंड एनी, ठीक है। तो यूएन की टीम गई भाई साहब, ठीक है, कहां पे? इराक में। यूएन टीम किसी भी कंट्री में जा सकती है जो उसका मेंबर नेशन है और वहां पे वो फाइंडिंग्स कर सकते हैं। तो यूएन से, यूनाइटेड नेशन से एक टीम कहां पे गई? इराक में, टू फाइंड वेदर सच न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड एंड वेदर दे रियली एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। उनको कुछ मिला नहीं, ठीक है। स्टिल द यूएस एंड इट्स अलाइज इन्वेडेड इराक। इन्होंने भाई साहब इराक पे कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड इट एंड रिमूव सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003। इसका मेन रीजन बेसिकली कुछ और है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन इसका मेन रीजन है कुवैत, ठीक है। तो कुवैत पे इराक ने अटैक कर दिया था रातों रात और कुवैत को पूरा कंट्रोल कर लिया था और इसीलिए अमेरिका को एक बहाना मिल गया इराक पे अटैक करने का। पहले से ही अमेरिका एंड इट्स अलाइज वर अगेंस्ट इराक एंड दे थॉट दैट सद्दाम हुसैन इज अ डिक्टेटर हु इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड लेट्स स्टैब्लिश डेमोक्रेसी आउट देयर। तो वो चाहते ही थे कि भाई साहब इनको उखाड़ फेंका जाए और डेमोक्रेसी को वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। इनको एक बहाना मिल गया, मतलब बोलते हैं ना चिंगारी मिल गई भाई साहब पूरा ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है। सो यूएन टीम भाई साहब इराक में गई टू सर्च फॉर सच वेपन्स, इट डिड नॉट फाइंड एनी। स्टिल द यूएस एंड इट्स अलाइज इन्वेडेड इराक, ऑक्यूपाइड इट एंड रिमूव सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003। तो सद्दाम हुसैन को पावर से रिमूव किया गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो कभी कभी वायलेंस पे उतर के डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं दूसरे कंट्री में। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज समटाइम्स द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर यूजिंग वायलेंस टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी आउट देयर, ठीक है, बिकॉज दे फील दैट ऑन अ वेरी लार्जर स्केल इन अ नॉन डेमोक्रेटिक नेशन देयर विल बी अ वायलेंस एंड देयर विल बी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये होगा ही। तो लेट्स स्टैब्लिश इट बाय वायलेंस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। स्टिल द यूएस एंड इट्स अलाइज इन्वेडेड इराक, ऑक्यूपाइड इट एंड रिमूव्ड सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003। तो सद्दाम हुसैन को भाई साहब पावर से निकाला गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ डेमोक्रेटिक नेशंस, ठीक है, रोज अगेंस्ट द नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस एंड दे यूज्ड वायलेंस और रादर वॉर टू रिमूव द नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। The US installed an interim government of its preference, एक interim government डाला गया। The war against Iraq was not authorized by the UN Security Council। ये जो war था इसको UN Security Council ने समर्थन नहीं दिया था। UN Security Council जो है it is against any kind of wars, ठीक है, तो इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। अभी UN Security Council में कौन कौन से नेशंस हैं? US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। यहां पे बाकी सारे नेशंस ने इसका समर्थन नहीं किया था, दे डिडंट ऑथराइज दिस, ठीक है। ये एक अनऑथराइज्ड वॉर था और शायद डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का एक गलत तरीका था, ठीक है। डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का एक गलत तरीका था, नॉट द बेस्ट ऑफ वेज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन अ नेशन, ठीक है, ओके। सो कोफी, द यूएन सेक्रेटरी जनरल, सेड दैट द यूएस वॉर ऑन इराक वाज इलीगल। ही वाज बेसिकली द सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएन, ठीक है। ये भाई साहब क्या थे? सेक्रेटरी जनरल थे और इन्होंने बोला कि भाई साहब दिस वॉर इज नॉट लीगल, इट शुडंट हैव हैपेंड, ठीक है। हालांकि यूएस ये दावा कर रही है कि भाई साहब हमने वॉर किया टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, टू ओवरथ्रो द डिक्टेटरशिप रूल ऑफ सद्दाम हुसैन, बट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल दिस वॉर इज इलीगल, यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। आप बाई फोर्स किसी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इनलीगैलिटी ऑफ द वॉर, ठीक है, ओके। सो दिस वाज बेसिकली एन एग्जांपल कि कैसे हमने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया, ओके। तो आपका इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्मा।